The questions they ask, you know what they ask? How did this come? Yes, ji, Where tell me, from this I, came? They ask, where did this chicken come from? You say it came from the mother chicken. And they'll ask, where did the mother chicken come from? Say it came from its mother chicken. So you can go on and on like this. Do you see? When the intellect starts maturing, it starts questioning the source of creation. Creativity is basis of the quest. That is how the concept of God rose in the mind of the man. I asked, how did the concept of God come from? I didn't ask whether there is God or not. Vijay ji, Did you can we see go what live? answers you were giving? YouTube पर लाइव जा सकते हैं क्या? स्वामी जी वो दोनों पे ना नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक। जब ये Did I ask what is God and what is not God? What was the question? Yeah. How did the concept of God arise? Isn't it? The same question I put it in two different ways, no? If you could say what is God, it is the concept, isn't it? It means the same. Creativity is the source. The intellect saw that there is so much orderliness, everything is being created. Somebody must have created this. So it labeled that power, that force, that source which is beneath the creation as God. The moment intellect labeled it as God, it became somebody like anyone else, like another person sitting in some heaven. And then he started punishing people, he started saying right and wrong, good and bad. All these dualities came, stories came up from that. You see this? God is not the creator, He is the creativity itself. See, a creator is one who becomes separate from the creation. Hmm?
He does something and he becomes separate. God can never be separate because everything is in God. All is God. There is nothing outside God. Even if a Saturn exists, even in case he exists, you think he will exist within God, not outside God. Do you get this? Huh? Omnipresent. That something which is omnipresent is also creativity. Is of course total silence and total activity. That something is beneath this flower too. You can call life. Then you will have to see that life exists also in the space, not only in the body, in the objects. If you could say that life exists, not as mosquitoes only, in the space, but also as the space itself. In the stones, in the stars, in the light and in darkness. You see what I mean? You can call it him, her, or it. See, some animals we call it, don't we? We don't call a cockroach she or he. We call it came. Huh? We say it came, or we say a lizard came. We don't say she came or he came. If you love the animal, then also it. So the creativity, the force, that principle, the source, one calls it Father because from there you have sprung. From there the creation has begun. So you call it Father, or you call it Mother, or you call it the creativity. It means the same. And when it has fully blossomed, fully manifest, it is perceivable. That is the sutra. Tasmin tajjane bheda bhava. In God and in the lover of God, there is no difference. In God, which is pure space and pure creativity and divine love, uncolored love, that is what is the enlightened too. Tasmin tajjane bheda bhavat. In your innermost self, in its purity, in its clarity, you are not different from God. You are anyway not different, but all that aspect of God is fully manifest in you too. Of course, everybody when they sleep, they are God.
Mind is expressing that pure consciousness. Tasmin tajjane bheda bhavat. In him and in his people there is no difference. His people means one who has merged in him, one who has the divine love has kindled, have blossomed. In him and in his people there is no difference. That's what Jesus said, no? Me and my Father are one. Aham Brahmasmi, I am God. Many saints have declared, I am God. You are God. All that is God. स्वामी जी पार्ट 2 स्टार्ट करो. You can see God in everywhere, only you need an eye to see it. God is the cheapest commodity that is available. You may not have good air somewhere, but God is there. You may not have sunshine somewhere, but God is there. You go to moon, God is there. You go beyond the atmosphere, God is there. God is all pervading. So life is all pervading. Love is all over. And when you sink in that state of love, there is no difference between you and that what is. God is not there just to fulfill your petty demands. Oh, heal my knee, heal my neck. God, take care of my brother, take care of my sister, take care of my wife. He is with you as your wife, He is with you as your daughter, He is with you as your father, He is with you as everything. See what we pray for? God, do me good, as though He is not doing good. We send recommendation to other people. Please, I recommend to so and so, so and so. See, when a child is away from the parent, all that it wants is to go to the parent, isn't it? But when it is with the parent, it doesn't bother about the parent, it is bothering about the toys. It says, I want this toy, I want this toy, you give me. It doesn't give attention to the parents. You can ask for small toys when you realize you are already sitting in the lap of the parent.
then even before you ask, the parent has granted you the toy you wanted. Parent gives the toy. But you can remain lost in the toys forever. Tasmin tajjane bheda bhavat. Don't see the difference between him and in his creation. See God right here. Is the concept of God in an unchanging personal form just another toy? If you think it is toy, it is no more a personal form. It is personal form, it is personal form. That's all. Hmm. So God can be both the totality of everything and a localized or personified form. Mm-hmm. Well, Jay, if God is creativity, then can we know God without being created? You can be creative only when you have known God. And all creativity springs from that area deep inside you, which is very pure. Creativity doesn't spring from the level of thinking. Have you observed? All these aeroplanes and cameras and everything, you think man created this? No. This is also creation of God. See this? At some level from deep inside, intuition came, a thought came, let me do this. And then he just acted, there was no choice for him but to act on those thoughts. Isn't it? What really baffles you or takes you away from this idea of God is science. But if you are matured in science, immature science, takes you away from. But if you are matured, even in science, go deep in science, then you appreciate this phenomenon, this phenomenal reality underneath this creation. Tell you that is the real devotee. Real devotee, one who appreciates the science and go through it and then recognizes the reality. Otherwise the doubts will... You see that? I don't mean everyone will have to study science and... No.
Science means what? Huh? Huh? Yeah. Seeing this whole thing, all the creations, all the creativity has sprung from some unknown area which cannot be explained but lived fully. Hmm? Krishna is there. स्वामी जी इसका तीसरा पार्ट भी है, वो भी प्ले करो। नहीं, 2 पार्ट काफी। क्या बोला गुरुदेव ने? कौन शेयर करेगा? कल आज मिलाकर बात करिए। स्टार्ट। स्वामी जी, गुरुदेव ने बोला कि ईश्वर जो है वो हर जगह है। अगर तुम ईश्वर को जान के तुम भी वही हो। यू इफ यू आर माइंड देन यू आर हिज ओनली एंड इन कण कण में है। अगर सूरज में है तो वो वहां भी ईश्वर है, चांद में, हर जगह। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। और हम भी वही हैं। बढ़िया। और Gurudev said ki when there is a creation that has happened, we are perceiving it as somebody has created it, and that is where actually it is not that. We label it as the creator or something like that, as a father, mother or somewhere, but Yes. actually the creator and the creation is the same. स्वामी जी इसी में ही क्रिएटिविटी जो के बारे में बोला गया कि वो डीप इनसाइड सम अननोन स्पेस से आती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट कैन बी लिव्ड फुली। और किसी का कोई थॉट नहीं है, मतलब कोई ये सोचे कि मैंने एक दिन दिमाग में मेरे आया और कुछ बन गया, नहीं। जो भी इन्वेंशंस हुई has been made by God. That intuition which helped him to say create airplanes, cameras, or any advanced machinery for that matter. मेरे हिसाब से तो इवन जो theorems भी डिस्कवर हुई होंगी या जो formulas भी है। Yes, what else? और गुरुदेव ने ये भी बोला जो क्रिएटिविटी है वो मैन से नहीं बनी, मतलब हमने नहीं बनाया। हम सोचते हैं कि हमने इन्वेंट किया। दैट इज ऑल्सो मतलब पावर है ईश्वर की ही। दैट इज डाउनलोडेड, जो थॉट आया। और हम, मुझे लग रहा है जैसे अभी हम बैठे हैं जो बात भी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो, ये जो सत्संग है, दिस इज ऑल्सो एवरीथिंग। मतलब फादर, मदर, चाइल्ड, एवरीथिंग इज दैट ओनली। वी आर इन द ओशन ऑफ एयर, वाटर। मतलब बड़ा वो वाला कुछ अलग है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं हम। वो वाला पार्ट कितने लोगों ने नोटिस किया? ईश्वर इज नॉट सपोज्ड टू डू दिस Petty things. गुरुजी ने वो आपके हर रिलेशन में, मतलब आपके भाई भी हैं, पत्नी भी हैं, माँ भी हैं, सब कुछ है। एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन द लैप ऑफ द गॉड, शायद माया है जो हम बाहर के खिलौने ढूंढते रहते हैं, जो हमारे को विमुक्त कर देती है। जैसे बच्चा अगर अपने माँ बाप की गोदी में आता है, वो तसल्ली हो जाती है, फिर उसको मांगने से पहले वो टॉय दिया जाता है। मतलब ये बताना चाहते गुरुजी कि जब आप
गुरु के पास होते हो तो हर चीज मिल जाती है, पर फिर क्या होता है, हम टॉय में फंस के रह जाते हैं, उसमें दिमाग चलने लग जाता है, माया में टाइप्स. Guruji is also saying regarding the gratefulness. If you don't have the gratitude, then it is of no use. जो मिला है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए. हम्म। तो अब क्या करें, भगवान तो हमारा काम करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करें फिर अब? हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ठीक कर दो. छुट्टी, अब आगे से कोई नहीं मांगेगा कुछ. हाँ बोलो अनुपमा. स्वामी जी, वो जो योग वशिष्ठ में भी है ना कि ईश्वर करते या भाग्य करते कोई चीज नहीं होती, तो कोई बात नहीं यहाँ पे. देहेरकर. हाँ स्वामी जी. हाँ बोलो. हाँ गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि कभी हम लोग गुफा में जाएंगे, वहाँ सनशाइन नहीं रहेगा, और ऐसे है कि ये दुनिया का मीन्स चालू है, चलता आ रहा है कि, और ऐसे है एक्चुअली स्पीकिंग कि फिजिकल फॉर्म एंड नॉन मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड फॉर्म, गॉड इज एवरीवेयर. जहाँ अगर आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है वहां भी भगवान है, और सब कुछ दिख रहा है वहां भी भगवान है. तो और गुरुजी के मुंह से मीन्स पहले हम लोग ऐसे ना ये मैकेनिकली सुनते थे कि गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन कल भी आप भी बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं ना, तो कोई कोई लोगों में या तो कोई कोई सिचुएशन में जहाँ मन लगता नहीं है ना, वहां ऐसे लगता है कि यहाँ से निकल जाए. लेकिन अभी जो गुरुजी ये बोल रहे हैं बात कि एक तो है कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहाँ भगवान है नहीं, और जब भी हम लोग प्रेम के एक्चुअल महसूस करते हैं, that time you are actually experiencing God and nothing else. करेक्ट 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 करेक्ट. और क्या कुछ बचा? Only when you are matured in science and deep in science will you understand this phenomena of God. Otherwise, you will feel it is non-existent. What I understood, Swami ji, कि गुरुजी ने बोला कि unless you're fully blossomed, that thing cannot be experienced. पहले वाले की last line, पहले एपिसोड की, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब तक, और फिर in conclusion with the whole thing कि God is not there to fulfill any desires, तो उसी वक्त मन में आया कि मैं ना चाहते हुए भी मैं मेरों के लिए हमेशा हम मांगते ही रहते हैं, या अपने लिए या अपनों के लिए, और उसके लिए फुल्ली ब्लॉसम का मतलब मैं और मेरा छोड़ने का. अगर फुल्ली ब्लॉसम होना है तो डिसीजन मुझे ही लेना पड़ेगा कि दैट्स इट, अब ये सब कुछ भगवान का ही है, कि वरना मैं मांगते रहेंगे ना, फिर उससे अटैच रहते हैं. सो दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द इंडिविजुअल, which I don't know ultimately does that also happen with grace, because Guruji is saying ki God is the one, so then you wait patiently for that moment to come, or you start taking steps towards it. वो थोड़ा unclear रहा मुझे, but otherwise it felt like कि उसमें थोड़ा सा एक दिल जो है वो हल्का सा उसमें कुछ होता है, moment you feel कि that's it, I have to let go. उस fully blossom situation के लिए, पूरा experience करने के लिए दोनों दोनों चलता है. जब मन नहीं मानता तो क्या करेंगे, पर जब ये बात हमारे रग रग में बस जाती है, मांगते तब हैं जब वो हमसे अलग है. जब ये रग रग में बस जाती है कि ना मैं उससे अलग हूं, ना कुछ भी उससे अलग नहीं है, तो मांगना क्या और क्या नहीं मांगना. एक तो ये बात है. दूसरी बात यह है कि
दो तरह से गुरुदेव ने समझाया। जब तक बच्चे वाले उदाहरण से कि माँ बाप पास नहीं होते तो माँ बाप के लिए शोर करता है, जब रहते हैं तो फिर वो खिलौने में व्यस्त होता है। एक तो हम भूल जाते हैं, पर दूसरा जो मैच्योरिटी होती है ना, जब हम ईश्वर के गोद में होते हैं तब फिर हम चीजों से खेल सकते हैं। पर उस समय ना ये अवेयरनेस जाती नहीं कि हम ईश्वर के गोद में बैठे हैं, खिलौने से खेल रहे, कोई बात। दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। पकड़ में आया क्या? हम ना मांगते हैं जी तो भिखारियों की तरह मांगते हैं। किसी से हम मांगते हैं, किसी से मांगते हैं, हम अपने से नहीं मांगते। और इसलिए भगवान हमारा अपना नहीं है। हमको लगता है वो मेरे से दूर है और मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, इसीलिए मांगते हैं। और वो बहुत पहले एक बार हमने बात किया था ना, ये हर पल हर क्षण प्रसाद ही है, उससे अलग हुए नहीं तो फिर माँ क्या, फिर भी मन नहीं मांगता तो मांग लेने का है। कैसे मांगना है? ये विश्वास के साथ कि हम उससे अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं। एंड स्वामी जी, इफ गॉड इज, जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि गॉड इज द वन हु क्रिएटेड द एरोप्लेन एंड दिस एंड दैट, तो बेसिकली ऑब्वियसली कहते हैं कारण का कारण भी वही है। तो फिर जो हमारे मन में जो विश्वास आता है वो भी तो फिर उसकी इच्छा से ही आएगा ना, जब आएगा कि इस वक्त दैट्स इट, आई एम स्टेडफास्ट इन की ना मैं ना मेरा, या वो इंडिविजुअल का डिसीजन हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे रग रग में बस जाता है। बस जब प्रैक्टिस से या अपने आप से, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। प्रैक्टिस से तो पता नहीं, मेरे अंदर तो प्रैक्टिस से नहीं बैठा। मेरे अंदर कैसे बैठा? मेरे से पूछा जाए तो बहुत साधारण सा विश्वास से। विश्वास, जब मान लिया, विश्वास हो गया, समझ लो, तो फिर वो हो ही गया। तो मुझे लास्ट में गुरुदेव ने कहा है ना वो कि इट हैज टू बी लिव्ड, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो उसको जिया जाना है, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। समझ के परे है, तो जीने से, श्रद्धा से, हाँ श्रद्धा से। ओके, गॉट इट, थैंक यू। याद है अभी कुछ नॉलेज शीट, कुछ 4-5 नॉलेज शीट पहले गुरुदेव ने ये बोला कि तुम ये जो हर समय चीजों को बदलने की इच्छा रखते हो ना, कुछ अच्छा हो जाए, प्रार्थना करने के लिए क्यों मन क्यों आता है? क्यों? जो है उसको बदलना है। बदल सकते हैं जब हमको ये पता होता है कि जिसको हम बदलना चाहते हैं वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर का ही प्रसाद है। और जहां हम उसको बदलना चाहते हैं वो भी ईश्वरत्व है, और ये जो बदलने की प्रक्रिया है वो भी ईश्वर। ये भाव से नहीं बदला जाता कि अभी जो है वो ईश्वर नहीं है, जो होगा सो ईश्वर है। ऐसे नहीं होता। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैंने पता क्या नोट किया स्वामी जी, जब ये भाव मन में आ जाता ना कि भाई तेरा ही है, तू तेरी इच्छा बदलना है बदल, लाइक जैसे अब लेटली व्हाट आई बीन नोटिसिंग कि प्रेयर करते करते सपोज किसी के लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, व्हाटएवर, तो सडनली मन में आता है कि हाँ तुम ही तो हो जो खेल रहे हो,
फिर वो मांग आधी रह जाती है और स्माइल आ जाता है, एंड देन आई जस्ट ड्रॉप इट कि ठीक है भाई तेरा खेल तू देख, लाइक दैट यू नो। फिर वो फिर वो होता ही नहीं, देन दैट काइंड ऑफ ड्रॉप्स, हाँ, अगर याद आ जाए उस वक्त तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और क्या था, मैं तो ध्यान में चला गया, इसलिए मुझे सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा नहीं नोटिस किया मैंने। मुझे पता नहीं कहाँ से ये विश्वास आया। नहीं याद आता कब शुरू हुआ ये। इस बारे में स्वामी जी बाबा नानक ने गौरांगी को पूरा पता होगा ये, क्योंकि वो कहते हैं थापे या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। सो आई गेस दैट इज आल्सो ग्रेस ना, श्रद्धा भी तो ग्रेस से ही आती है। हाँ, इसलिए श्रद्धा इस सृष्टि का, इस जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। बहुत सौभाग्य से लोगों को मिलता है, पर उसके लिए हम कहीं तो ओपन अप अपने आप को करने के लिए तैयार तो हूँ। ऐसा नहीं है मेरे अंदर शुरू से श्रद्धा थी। मैंने तो बोला था जय गुरुदेव भी नहीं निकलता था, गुरुदेव पर भी बहुत सारे डाउट थे, बहुत तरह से था। ऐसा कोई कुछ भी नहीं था कि गुरुजी। पर कुछ तो हुआ, क्या हुआ भगवान जाने, पर कुछ तो हुआ। स्वामी जी, ये श्रद्धा कैसे आती है? क्योंकि किसी के कहने से तो श्रद्धा आती नहीं है, तो ये कैसे कैसे अपने मन में आता है फिर? श्रद्धा कहाँ से आती है? हाँ, मतलब वो श्रद्धा कैसे पनपती है या कैसे आती है? कोई किसी को कह दे कि हाँ श्रद्धा से करो, तो वैसे तो होता नहीं है। कैसे ये खुद में आता है? मतलब पहले श्रद्धा नहीं था, अभी श्रद्धा होने लगा, तो कैसे ये कहाँ से मेरे में सोर्स? श्रद्धा नहीं थी, फिर कैसे आई श्रद्धा? श्रद्धा किसी न किसी मात्रा में हम सब में तो है। कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव कभी कभी हंस के बोलते हैं ना, तुम जो ये बोलते हो मुझे किसी में श्रद्धा नहीं, कम से कम इस बात में तो तुम्हारी श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा तो है हमारे अंदर, ये बात तो तय है। फिर धीरे धीरे जब आंखें खुलती है ना, आंखें खोलने का काम ज्ञान से, अनुभव से होता है। जब मैंने गुरुदेव को देखा, मैंने अपने जीवन को देखा, ज्ञान भी रहा, मतलब ज्ञान का भी इसमें भूमिका रही ज्ञान की। अपने जीवन को देखा, अपने मन को पलटते देखा, अनुभव किया चीजों को, तो फिर अपने आप वो फिर श्रद्धा में बदल गई, चीजें अपने आप बदल गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अपने अनुभव को, आपकी बात को पूरी दुनिया नकार सकती है, आप अपने अनुभव को, आप दुनिया नकारे या ना नकारे, आपको पता है कि ये सही सच है। इसको दुनिया के कुछ बोलने नहीं बोलने से क्या होता है। स्वामी जी, हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब हमने पहली बार कोर्स किया और सुदर्शन क्रिया करी, तो कहीं श्रद्धा थी, कुछ था, तभी आज हम यहाँ है ना। ये भी तो श्रद्धा ही है ना। हाँ है कि ना, बिल्कुल नहीं है। तो कितने लोग करके आए नहीं, कि जैसे हमारे साथ कितनों ने किया। तो ये भी तो श्रद्धा का ही पार्ट हो गया ना, कि कुछ तो है। क्या है तो पता नहीं, बस है, दैट्स इट। तो नहीं आए ऐसा लगता है, उसको छोड़
उसको अपनी श्रद्धा बताने के लिए उसको यहाँ लाने की आवश्यकता है नहीं। स्वामी जी अभी आपने जो कहा ना वही एग्जैक्टली गुरुजी ने पार्ट 2 में कहा भी, यू गो थ्रू इट एंड रिकॉग्नाइज इट्स रियलिटी, अदरवाइज मतलब आपने अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया अदरवाइज डाउट्स विल बी देयर। अभी जो आपने कहा ना तो अदरवाइज वो मैं अपने जीवन को देखूं तो वही है, देखता गया। तो जब आप देखते आप उसको नकार कैसे सकते हैं? जो चीज आपने अनुभव की, जो आप देख रहे हैं वो सामने है। मैंने कोई गुरुदेव को भगवान के रूप में देख लिया ऐसा तो नहीं है, टपक गए कुछ हो गया, नहीं देखा मैंने। अपने अंदर जो अनुभव देखे, बदलाव देखे। पर स्वामी जी मेरा ऐसा है कि मतलब क्रिया करने से पहले या ये कोर्स करने से पहले से ही एक श्रद्धा गुरु जी पर था, मतलब किसी के बोलने से। तो इसको कैसे समझे कि ये मेरे में कैसे आया, कहाँ से आया ये चीज? हाँ था तो ठीक तो है, क्या गड़बड़? किसी के बोलने से आया, सुनकर आया ना, ठीक है। पर मेरे समय में कोई बोलने वाला नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था, इसलिए तो वास्तव। अच्छा, अब देखिए ना, आप अपने अनुभव पर विश्वास करते हैं तो बिना श्रद्धा के कहाँ से विश्वास कर पाएंगे? बहुत बार लोगों को नहीं लगता है, अरे पता नहीं मैं सच में अनुभव कर रहा हूँ या ऐसे ही हेलुसिनेशन है या मैं क्या कर रहा हूँ। आप जिस ज्ञान को समझ रहे हैं, जो आपके अंदर वो समझ उतर रही है, उस आखिर ज्ञान पर विश्वास रखा तब ना। तो श्रद्धा तो है ही हम सबके अंदर, ये बात तो 100% तय है। जब हम अपने अनुभव ज्ञान सबको न एक दूसरे से जोड़ के देखने लगते हैं तो फिर हो जाता है, फिर तो हो जाता है। स्वामी जी प्रेम से भी तो श्रद्धा बढ़ता है, हाँ, प्रेम से भी तो श्रद्धा बढ़ती है। ये भी है। प्रेम की तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा होगी तभी तो प्रेम करेंगे, दोनों है। तो स्वामी जी ये बात एक और तरीके से मतलब सत्य हो गई या लॉजिक से देखा जाए, आपने कहा श्रद्धा सब में होती है, ऐसे ही अगर हमारा स्वभाव प्रेम है तो हम सब में प्रेम है तभी तो श्रद्धा आई। प्रेम तो है ही हम सब में। हाँ, तो मतलब ये तो बात जैसे उस दिन आप कह रहे थे ना कि ज्ञान ही ईश्वर है, ये तो कंफर्म्ड हो गया, अब तो कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो वो ये बात भी एक और तरीके से कंफर्म, हमारा स्वभाव प्रेम है। ये तो है। एक छोटी सी चीज और ऐड करनी जो आप कह रहे थे, हमारे सिंधी में एक सेंट है, वो ऐसे बोलते थे कि मतलब मैं सिंधी में सुनाता हूँ, फिर उसे हिंदी में पुट चिंता ना कर दही जमी वेंदी, कंहिंजी देर सां जमंदी, कंहिंजी पैणी जमी वेंदी। मतलब उनका ये था कि विश्वास सबके अंदर है, किसी में जल्दी आ जाएगा, किसी में, लेकिन एक दिन तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास जम जाएगा। सो हैव पेशेंस। अभी बात ये वाले दोनों वीडियो में ना बात बहुत आगे चली गई। अब ईश्वर पर विश्वास करने की बात नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकारने की, बस उसको पता नहीं इसको कैसे बोले, स्वीकारने की बात है, आंखें खोलने की बात है, कैसे बोले, है बस है। अगर कोई व्यक्ति जो है उसको देखने के लिए ही नहीं तैयार है तो क्या बोले। स्वामी जी इसलिए अब विश्वास के परे चली गई बात, खासकर ये वीडियो देखने के बाद। हाँ देर का हाँ, ये
बात घड़ी घड़ी मन में आ रही है कि एक बार इधर बॉम्बे में एक स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल है गर्ल्स के लिए, और वहाँ पल्लवी दत्त करके है इंट्यूशन की टीचर, उन्होंने कोर्स रखा था। और फिर हर महीने ऐसे 4-5 महीने लगातार हम लोग वहाँ फॉलो अप लेने के लिए गए। तो वो लड़कियों ने गुरुदेव को देखा भी नहीं है, तो उनमें से एक लड़की ने बराबर गुरुदेव कैसे दिखते हैं बताया। फिर दूसरी लड़की ने बोला कि हम लोग ये रोज कर रहे हैं, उनको कोई भी उधर नहीं है, वो हॉस्टल जैसी रह रही है वहां, तो वो खुद ब खुद रोज प्रैक्टिस करे इंट्यूशन की। और उनको रात को जब भी जाना है, वॉशरूम जाना है या तो पानी पीने जाना है, तो पहले बहुत डर लगता था, तो अभी बोल रहे हैं कि अभी ऐसे लगता है कि कोई हाथ पकड़ के हम लोग का ये कर रहा है, गाइड कर रहे हैं हम लोग को, बिल्कुल दीदी डर नहीं लगता। और जैसे हम लोग गए थे उनको फॉलो अप लेने के लिए, तो हमेशा क्या, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, मीन्स बच्चों का ही कोर्स है, वैसे तो सब बच्चे इनोसेंट है, लेकिन ये इसमें इतना ज्यादा इनोसेंस था कि वो बच्चियों ने एक्सेप्टेंस से इतना अच्छे से ये कर लिया था, सीख लिया था, जो बोल रहे थे वो कर रही थी वो बच्चियां। और ये सबको मीन्स हम लोग जो भी सिखाने गए थे वॉलंटियर बन के वहां, तो वो हम लोग सबको यही था, वंडर में रख दिया गुरुदेव ने कि गुरुदेव को उन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन जो उनके लिए वो गुरुदेव की अटैचमेंट थी ना, वो उनको बिना देखे हुए भी कितनी ज्यादा थी। तो उससे मेरा ऐसे कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिससे मेरा और ज्यादा गुरुदेव के साथ और नाता जुड़ गया, कि मैंने गुरुदेव को इतना अंदर से ये किया कि जैसे कि कोई ऐसे फ्रेंड है, उनका हाथ पकड़ के बोले कि आपने तो सचमुच में गुरुदेव कमाल ही कर दिया इनके जीवन में, क्योंकि ये जीवन को लोग तो डोनेशन देते रहते ये वो, लेकिन ये रात वाली बात जो उन्होंने बताई कि ऐसे गुरुदेव उनको ये करते हैं, कभी बिल्कुल अभी डर ही नहीं लगता किसी चीज का उनको। 4 महीने की बात थी ऐसे, तो वो सोच के देहरकर भी एकदम ये था। देहरकर ये सही है, और उन्होंने जो अनुभव किया बहुत सुंदर है, पर अब बात ना उससे आगे चली गई। अगर आपको बात ये पकड़ में आती है तो बात अब बहुत आगे चली गई। आगे चली गई मतलब, एक मिनट, बैटरी डाउन। ये बोल रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ, बात अब बहुत आगे चली गई। गुरुदेव को कोई रूप में देख पाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे उसकी आंखें हैं या नहीं है। बात केवल अगर रूप से तक सीमित होती ना, तो रात को उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। ये बात आई पकड़ में? यहाँ कुछ ऐसा है जो सारे रूप के परे भी है और सारे रूप में भी है। यही गुरुदेव बोल रहे हैं। कोई रूप उससे परे नहीं और वो रूप तक सीमित नहीं। ये बात हमको भी ना पकड़ में आनी चाहिए, तब हम ईश्वर को ना बिना रूप के भी देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। रूप में देखना तो खैर वो हमारे सामने दिखते हैं, दिख ही रहे हैं, जिस रूप में देखना चाहे देख सकते हैं।
पर रूप के चले जाने से ईश्वरत्व तो समाप्त तो नहीं हो जाएगा। इसलिए एक बार ध्यान में मैंने देखा गुरुदेव को, पर इस जन्म से पहले, कई जन्म पहले की बात है। तो अब मैं किसी को ये थोड़ी समझा सकता हूँ कि गुरुदेव तो इस जन्म में है, तो फिर पहले के जन्म में कैसे दिखे। ये बात आई क्या पकड़ में? तो वो सब जो मैजिक है ना, अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर बहुत छोटी सी बात है। देख, और ऐसा नहीं है कि ये सब मैजिक हमारे साथ नहीं होता, होता है ना। तो फिर हाँ सोनी। स्वामी जी, बहुत बार ऐसा हमको लगता था कि सबका चमत्कार कुछ कुछ सुनते हैं और मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा। पर आज एकदम अफसोस नहीं हो रहा है कि चमत्कार मेरे साथ नहीं हम अनुभव किए हैं। बस खुश हैं इस बात से भी। क्या क्या समझ में आता है, बाप रे। आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग सोनू जी, कि मेरे को तो कभी ना सपने में किधर उधर कभी नजर नहीं आते। गॉड नोज वेयर आई एम। और उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में पता नहीं कितने कितने जब वो सामने रहती है है। ही तो क्या करेंगे सपने में आके। जो ओझिल होगा वो ना सपने में आएगा। जब उनको लगता है कि हाँ ठीक है, सपने में ही आ जाओ, तो आ जाते हैं। इनको तीनों फिर हो जाएगा त्रिपुर रहस्य। उनको तीनों लोगों का एक्सेस पास है ना। जब हम अपने आप को विशुद्ध चेतना के रूप में अनुभव कर लेंगे तब हमको भी हो जाएगा। अभी जागृत अवस्था में बहुत थोड़ा ही है, शायद ही है। बाकी तो सुसुप्ति और उसकी तो बात ही अलग है। तो स्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग के ही हमारे जो एक और टीचर हैं आश्रम से, वो कह रहे थे कि आप अगर उसे रूप में देखना चाहो तो उसकी अनुभूति रूप में ही होती है, और अगर निराकार में चाहो तो सिर्फ निराकार में ही होती है। इज दैट सो? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है ना, जो मुझको जिस रूप में भजेगा। जैसे कोई अगर लक्ष्मी के रूप में पूजेगा तो लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी में भी जो केवल धन के रूप में पूजेगा उसको धन ही मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोल ही दिया, पर प्रौढ़ता क्या है वो अब हमको समझ में आ रहा है, उसी को ध्यान रखना है। पता नहीं कैसे ये वाला YouTube पर है, इतना अद्भुत। किसी ने बताया नहीं है क्या इसको, पब्लिकेशन को, ये YouTube पर है। एनीवे नहीं स्वामी जी, हमारे यहाँ से जेम्स करके टीचर हैं जिनके पास गुरु जी की बहुत पुरानी पुरानी वो है। ही इज द वन विद अ टीम ऑफ फ्यू अदर वॉलंटियर्स, ही इज पुटिंग दीज थिंग्स ऑनलाइन। जितनी पुरानी पुरानी उनके पास हैं बहुत सारी,
वो उन्हें मिली, they were just in a box, so they are like now putting them on the videos. एनीवे हम आज 17 है ना, 17, 18, 19, 20, 21 तक तो हम करेंगे सेशन। 22 से फिर 30 तारीख तक नहीं करेंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे, ठीक ना? चलिए फिर, अब ध्यान व्यान नहीं आज, छुट्टी, कल कर लेंगे ध्यान। जी रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ स्वामी जी